Yes, should we start now? बहुत कम स्टूडेंट्स हो रहे हैं. Do inform them. They will not attend. The whole report will go to the principal, sir office. Fine. Now, in last class we discussed that NMOS fabrication. That was clear to all of you. Say yes or no. कल अपन ने एनमॉस फैब्रिकेशन और डिप्लीशन पढ़ा था. क्लियर है तुम लोगों को? और उसके बाद अपन ने देखा था कि सीमॉस में फैब्रिकेशन 4 टाइप से हो सकता है. एनवेल, पीवेल, ट्विन टब एंड सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर. सो एनवेल पीवेल में हमने ये सारी स्टेप्स लिख दी थी प्रोसेसिंग की. ठीक है. नाउ वी विल इलेबोरेटली डिस्कस दिस. सबसे पहले वेल से क्या समझ रहे हो? पर्टिकुलरली एक ये नेचुरल सी चीज़ है कि मेरा एक सबस्ट्रेट होगा और उसमें मुझे सीमॉस बनाना है. CMOS means one NMOS and one PMOS used to be there. So why there is a need of well? Because if well is not going to be there, then how both NMOS and PMOS is going to form on a same substrate? That is going to be very much clear to you when we'll proceed with diagram to its designing. Right? So very first, what to do, इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम है वेरी शॉर्ट वे में हमने पूरा बना लिया है. मतलब 4 डायग्राम्स है. जैसे पिछली कल क्लास में तो अपन ने like so many diagrams were there and finally we approached, but here I just want to mention you, like for getting marks, like if it is coming in a 10 or 15 marks question, then you need to make all circuit diagram along with the particular I must say description. So for that it's better if you draw diagram. So here what you do, this design I finish, I try to make only 4 or 5 diagram. तो ये वैसे तो ये itself इस पिक्चर में 4 स्टेप कंप्लीट हो रही है. व्हाट? सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिजाइन एन टाइप सबस्ट्रेट. एन टाइप सबस्ट्रेट के लिए आई टोल्ड यू वी जस्ट मेक दिस डैश एंड स्लांटिंग लाइन. देन एन टाइप सबस्ट्रेट फॉर्मिंग के बाद इसमें दूसरी स्टेप क्या हुई होगी? SiO2 लेयर. दिस. Then third step will be photoresist and masking process to remove this much area to induce P-well. And fourth one में हमने P-type well form कर दिया है. P-well diffusions are taken. Means 4 diagram merge into one. So I will suggest ये बनाओ तुम. एक P-well के मैं तुम्हें सारा टाइम दे रही हूँ. N-well में सिर्फ हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे और बाकी तो इतना मेनली ये दोनों में से एक पूछा जाता है. ठीक है. So make this diagram so that the step will be clear. But here I only mention deep P-well diffusion are take place. But when you make this diagram and write, you need to write down, okay fine, P-well diffusion take place, and before that first we form the N substrate, SiO2 layer, then P-well diffusion is going to take place after photoresist, masking and etching process. ठीक है. बनाओ ये डायग्राम. मैं तुम्हें 2 मिनट देती हूँ. बना लिया बेटा? प्लीज मेक इट बिट फास्ट. आज अपना फैब्रिकेशन पूरा हो जाना चाहिए.
बन गया. Now next what is going to be there? After that what we need to do again, thin oxide grown to accumulate p and n transistors and diffusion via pattern, the polysilicon layer which is deposited after the thin oxide. In this process also 3 steps merge together. What are those? See, in this only p-well region form. After that again photoresist, masking and etching will take place to make diffusion here and here. That is going to take place. See, p-well का गेट फॉर्म हो गया, यहाँ SiO2 लेयर वापस आई और फिर हमने पॉलीसिलिकॉन की कोटिंग कर दी. Here also polysilicon coating is going to take place. Make this diagram. बना लो तो फटाफट मेरे को बोलो बेटा, है ना. यू कैन नॉट वेस्ट टाइम. सिंपली इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया है. जस्ट आफ्टर दिस प्रोसेस वंस अगेन SiO2 लेयर कोटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. देन पॉलीसिलिकॉन की N और P टाइप ट्रांजिस्टर की हमने यहाँ कोटिंग करी. क्या आफ्टर दैट व्हाट इज गोइंग टू बी टेक प्लेस? नेक्स्ट स्टेप, हम बाहर जो हमारा ये N सबस्ट्रेट है यहाँ पर हम N टाइप डिफ्यूजन टेक प्लेस करेंगे ऑल एरियाज, वेयर एज P डिफ्यूजन इज टेक प्लेस. ठीक है, यहाँ पर. और P डिफ्यूजन में हम क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप हमारी वाइडर्स लाइन जाती है. तो ये हमारा एक तरीके से NMOS फॉर्म हो गया, सॉरी PMOS. P टाइप डिफ्यूजन किया है अपन ने. सोर्स और ड्रेन हमारे किस तरह के, P टाइप के. सो दिस PMOS इज गोइंग टू बी फॉर्म, राइट. और इधर हम क्या कर रहे हैं, P प्लस मास्क पॉजिटिव. यहाँ हमने ईचिंग करके ये एरिया वो कर पूरे इस पर हमने P प्लस मास्किंग करी थी. फिर हमने ईचिंग से ये इस एरिया में P टाइप डिफ्यूजन कर. जल्दी बना लो. अब इसमें 2 डायग्राम हो रहा है, देन इट इज अ फाइनल डायग्राम. सॉरी, ये वाला हो गया तुम्हारा डायग्राम बेटा. सी प्लीज योर रिस्पॉन्स शुड बी रेसिप्रोसिटी ऑफ माई रिस्पॉन्स. आई वॉन्ट 2-वे कम्युनिकेशन बेटा. ठीक है, ये बना लिया. अब अभी तक अपन ने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में हमारे N सबस्ट्रेट के बाद P-well डिफ्यूजन हुआ, सॉरी P-well फॉर्म हुआ. सेकेंड स्टेप में पॉलीसिलिकॉन की कोटिंग करी हमने. इन अ वेरी थर्ड स्टेप वी डिड डिफ्यूजन, P टाइप डिफ्यूजन बाय P मास्किंग. नाउ इन द फोर्थ स्टेप व्हाट वी विल डू हियर, अगेन वी आर सपोज टू डू N डिफ्यूजन. व्हाई वी विल डू N डिफ्यूजन हियर? सी, यहाँ N सबस्ट्रेट था तो उसके अपोजिट P टाइप हमने डिफ्यूज किया और ये एक हमने PMOS फॉर्म किया. P-well फॉर्म कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या डिजाइन करेंगे, NMOS. तो इस P-well के अंदर हमने N टाइप इम्प्योरिटी डिफ्यूज करी एंड दैट इज गोइंग टू बी माई NMOS. या तो जो तुमने पहले डायग्राम बनाया उसी में ये चेंज कर, ये स्टेप लिख के और ये चेंज कर सकते हो. इसके बाद अपना फाइनल डायग्राम आने वाला है.
ठीक है, जल्दी बनाओ। बनानी है बेटा? या एंड फाइनली इसके बाद अपन क्या करते हैं, दिस सबस्ट्रेट बायस की एक, जैसे ये पी टाइप डिफ्यूजन किया है तो इस पे एन टाइप सबस्ट्रेट फॉर्म होगा, और यहाँ पर एन है तो यहाँ पी टाइप होगा। ये वी इन हो गया, ये वी आउट हो गया, वीडीडी, और ये वीएसएस हो गया। ये नोटिफिकेशन मैंने तुम लोगों के लिए अलग से वापस पेस्ट किए हैं। SiO2 लाइन को हम, क्योंकि फैब्रिकेशन में सी डिजाइनिंग इज मेन, हाउ यू आर ड्राइंग द पिक्चर। Even if I am telling you, you made all diagram and write down less theory, you will get 70 to 80% marks. But you noted down all theory and no diagram, you will get only 20% marks. So diagram is the main criteria as far as fabrication is concerned. Further also, when we will move for the designing, layout, everywhere in a VLS side, diagram is a main criteria. तो SiO2 में ये देखो डॉटेड लाइन से होता है, एन टाइप डिफ्यूजन में नैरो लाइन होती है, पी टाइप में थोड़ी वाइडर होती है। पॉलीसिलिकॉन स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिफ्यूजन, लाइक टॉप टू बॉटम, एंड मेटल में इस तरह का होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एक पी वेल सीमॉस का फाइनल डायग्राम है। फाइन, अगर टाइम, वैसे तो तुम्हें सारी स्टेप्स कवर करनी है, नहीं टाइम मिलता है सपोज, सो दिस डायग्राम इज मेन, इट इज रिप्रेजेंटिंग, दिस इज माई एन टाइप सबस्ट्रेट, पी वेल आई फॉर्म, then I did p-type diffusion and formed PMOS, here NMOS, and then हमने substrate से बाइसिंग करके VDD, VSS और ये बनाया। ठीक है, बना लो अगर ये डायग्राम बनाना चाहते हो, और पेंसिल वगैरह यूज करना while making the diagram in the examination। बना लिया? सी आई एम गिविंग यू टाइम। हाँ बोलो बेटा वंदना। ये हाँ, एक्चुअली राइट क्वेश्चन, आई एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई पूछे। बेसिकली ये है, ये चीज़ तुम पकनील की बुक में भी देखना, और ऐसे भी जनरली जो बेसिक मॉस होते हैं फैब्रिकेशन के टाइम या लेआउट में भी हमसे बनाते हैं, ये वाली जो चीज़ है इसमें भी 3 स्टेप तुम्हारी डिफ्यूज है। एंड वन मोर थिंग इज स्किप हियर, व्हाट, ये जो मेटलाइजेशन करते हैं, ये डायग्राम एक्चुअली क्या है, पर्टिकुलरली प्रीवियस ये सारे डायग्राम्स मैंने एक बार स्लाइड्स बनाई थी, उसके बाद तुम्हारे सीनियर्स थे, मैंने उनको कहा था, आई प्रोवाइडेड देम अ इलेक्ट्रॉनिक टूल and told to make, so they tried their level best just to make as original one, but two mistake they did. One is, जब भी हम ये V in, V out, VDD, VSS बनाते हैं तो मेटलाइजेशन की कोडिंग हमेशा करते हैं, where मेटलाइजेशन here and in this place which is missing. Secondly, यहाँ एंड सबस्ट्रेट आएगा, एंड नहीं लिखा है। ये वाली चीज़ हमने वापस से डिफ्यूज़ इसलिए करी है कि
आगे तुम सेकेंड ऑर्डर और हायर इफेक्ट में जब तुम्हें इसी यूनिट में पढ़ाऊंगी, यू विल कम टू नो ईच कॉन्टैक्ट, मतलब ईच मतलब सप्लाई का और ग्राउंड का. VSS जनरली यूज टू बी ग्राउंडेड एंड VDD यूज टू बी सप्लाई गिवन टू दैट पर्टिकुलर मॉस. तो इन दोनों टर्मिनल को हम जिस भी NMOS है, वेदर इट इज़ अ PMOS, उसका हम एक सबस्ट्रेट फॉर्म करते हैं और वो जनरली कनेक्ट रहता है वेरी नेक्स्ट टू द सोर्स पार्ट. सोर्स, अगर हम इधर सप्लाई की बात करें तो PMOS में सोर्स के पास रहता है, और इधर इसकी बात करें NMOS की तो वो इधर ड्रेन के पास रहता है. तो ये जस्ट फॉर कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए, मीन्स टू होल्ड, यू कैन से मेजॉरिटी कैरियर्स जो तुम्हारे नहीं रहते हैं उनका मूव ऑन बैलेंसिंग हो, उसके लिए हम ये करते हैं कि दोनों के टर्मिनल में हम, जैसे अगर PMOS है तो N टाइप का सबस्ट्रेट कनेक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, और ये यहाँ पर भी ये सबस्ट्रेट है, ये PMOS टाइप P टाइप का और ये N टाइप का. सेम थिंग यू विल सी इन N-well प्रोसेस ऑल्सो. ठीक है, अगर इसकी समरी हम देखें, वैसे मैं कल भी बता चुकी थी, तो आई एम जस्ट जो स्टेप्स अपन ने कंप्लीट करी है वही सेम थिंग, इट इज जस्ट समराइज. ठीक है, सी ये सारी चीज़ें हमने लिखी है. यहाँ हमने नहीं लिखा मेटल लेयर पैटर्न इज डिफाइंड, तो मेटलाइजेशन वाला इसमें नहीं किया हुआ है, वो नेक्स्ट इसमें है शायद. नाउ कम्स N-well. P-well फैब्रिकेशन क्लियर है तुम्हें? P-well में अगर ब्रॉड विजन में तुम्हें समरी दे लेनी है तो यही है. सबसे पहले हम सबस्ट्रेट बनाएंगे, सेकेंड थिंग इज P-well फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप इज आउटसाइड N टाइप डिफ्यूज करके, सॉरी P डिफ्यूजन यूज टू टेक प्लेस एंड वी फॉर्म PMOS. इनसाइड N type diffusion, that it is going to make your NMOS. This is your NMOS, this is your PMOS. After metallization coating, we invent out form, but before that we connect the substrate bias in a vice versa position. ये P है तो इसमें N टाइप का, ये N है तो इसमें P टाइप. ठीक है, now comes N-well fabrication step. जस्ट जो अपन ने P-well में किया उसी का जस्ट इधर अपोजिट होगा तुम्हारे. ठीक है, तो इसमें N-well है तो इट इज अंडरस्टूड मेरा सबस्ट्रेट किस तरह का होगा, P टाइप का. जो वेल प्रोसेस हम ले रहे हैं उसके अपोजिट टाइप का हम सबस्ट्रेट लेंगे. तो P टाइप सबस्ट्रेट इज देयर, देन N-well फॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, देन वी डिफाइन NMOS एंड PMOS एक्टिव एरियाज, फील्ड एंड गेट ऑक्सीडाइजेशन, देन फॉर्म एंड पैटर्न, P diffusion, N diffusion, contact cut, pattern metallization, overglass with cuts and bonding pads. ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, वैसे नहीं तो तुमने कल लिखा था क्या P-well fabrication का? Have you noted down yesterday? Yes or no? All are sleeping. Should I consider this? P-well फॉर्मेशन क्लियर है सबको? ठीक है, तो कल P-well में जो स्टेप्स लिखी थी वही जस्ट अपोजिट वे में N-well के लिए, मतलब जस्ट तुम्हें उस प्रोसेस में P को N से रिप्लेस करना. ठीक है, इस फैब्रिकेशन को मैं थोड़ा फास्ट लूंगी क्योंकि अपन ने पहले वाला किया. ये पॉइंट्स तुम लिखना चाहते हो क्या? यस और नो? ना, क्योंकि जस्ट उसी का वाइस वर्सा है. ठीक है, N-well फैब्रिकेशन में क्या होगा, वेरी फर्स्ट
we will form a P substrate. Cover wafer with protective SiO2 layer. ठीक है, दिस इज. और P substrate कैसे फॉर्म करते हैं हम? इस तरह की लाइन से. सेकेंड थिंग, एनवेल रीजन फॉर्मेशन. सबसे पहले हमने P टाइप का सबस्ट्रेट लिया. सेकेंड, वी विल फॉर्म एनवेल रीजन. So how it is going to form? Cover wafer with protective layer of SiO2. Remove the layer. Anvil should be built. Implantation, diffuse and dopants expose wafer and stripe of SiO2. Once again, this P substrate रहा, इसमें हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कोटिंग कर दी. ठीक है, फिर वापस वही फोटो रेजिस्ट वाली और मास्किंग वाली प्रोसेस करेंगे हम. काय के लिए? टू फॉर्म एनवेल हियर. ठीक है, and then it is going to be formed. Fine. Again, now what we will do? First of all, we will coat thin SiO2 coating and then polysilicon की हम इस पे coating करेंगे. So after polysilicon, it is going to be like this. Then what we require? We require P substrate है तो यहाँ हम किस तरह का डिफ्यूजन करेंगे? N टाइप का. और यहाँ एनवेल है तो किस तरह का करेंगे? P टाइप का. So first, और हमेशा ध्यान रखना जो वेल हम फॉर्म कर रहे हैं उसके आउटसाइड वाला मॉस हम पहले बनाएंगे. तो हमने यहाँ N+ डिफ्यूजन किया, फिर इधर P+ डिफ्यूजन किया. And after that, see, Vandana, the thing query you asked, why we again diffuse opposite kind of substrate? So similar set step, like in a P diffusion region for PMOS source, drain and substrate contacts are applied. So this is my substrate contact, which I used to form here and here. Okay. And this is a final diagram. Cross-sectional view of anvil. This I will suggest you to make. सारी स्टेप्स जैसे P वेल में हमने एक्सप्लेन करी थी उसके अपोजिट है एनवेल में, but this diagram is a main one. So draw it, and it will clear your concept also. Like P substrate, एनवेल बनाएंगे तो ये ऐसा बन गया हमारा. एनवेल के अंदर P टाइप डिफ्यूज करके PMOS बनाया, इधर NMOS बनाया. सबस्ट्रेट इधर N टाइप का हो गया, इधर P टाइप का हो गया. दिस इज माई VDD VSS. मेक इट फास्ट. आज फैब्रिकेशन अपन कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी. अब इसमें ज़्यादा है ही नहीं. ये 2 प्रोसेस मेन है थी इसकी जो अपन कर चुके हैं. बन गया क्या बेटा? ड्रॉ फास्ट. Ma'am, what we do just before metallization on step 9? Contact cut used to be formed. Contact cut means, see, here this NMOS is there. Yes. Before metallization, we form this substrate beside your NMOS or a PMOS, and then contact cut is used to apply. Contact cut means जो हम VDD, VSS, V-in, V-out के लिए नहीं करते हैं, that we need to form.
वही SiO2 कोटिंग, उसके बाद मेटलाइजेशन, sputter and aluminum over whole wafer pattern to remove excess metal leaving wires. ठीक है. Okay मैम. Now next, ये बन गया क्या तुम्हारा डायग्राम? फाइनल क्रॉस सेक्शनल व्यू वाला बना लिया? किसी ने भी नहीं बनाया क्या? अब नाउ नेक्स्ट, ट्विन टब सबस्ट्रेट इज देयर. ट्विन टब टेक्नोलॉजी, दिस इज अ थर्ड मेथड. इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, अब अपने पास इतना टाइम नहीं बचा है. ट्विन टब स्ट्रक्चर जो है, basically it is a combination of, or you can say logical extension of P-well and N-well approaches. It allows separate optimization of N-type and P-type transistor. Now see here, यहाँ पे क्या किया है? Very first N-type substrate you need to take a huge, I must say, SiO2 coating is going to take place. Then again photoresist और masking से इसमें क्या करते हैं, एक तरफ हम N-well फॉर्म करते हैं और दूसरी तरफ P-well, but this process is not going to parallel. First we form N-well, then P-well, then here P-type diffusion, here N-type diffusion, then metallization, contact cuts बनेंगे, उसके before हम substrate को connect करेंगे. This is a complete twin tub. Twin tub means my CMOS is a combination of N-well and P-well approaches both together. ठीक है? That is the steps fabrication continuing this. Is it clear? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या प्रिंट स्क्रीन ले लो अगर लैपटॉप पे है तुम्हारे तो. ठीक है? This could be asked in your main examination. So what you need to be concerned, like ये आता है तो ये डायग्राम में इसके जो N और P-well के जितने भी प्रोसेस है वो सब तुम्हें एलेबोरेट करके लिखनी है. But once again I need to mention you, be practical and be value your time. Depending on the marks given to that particular question, you need to justify your answer. Okay? Fine. अब SOI से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फाइन. SOI ज़्यादा डिटेल में वैसे भी नहीं है लेकिन फिर भी अपन डिस्कस करेंगे. एंड देन we'll start the electrical parameter like IDS versus VDS relationship and other parameters. So tomorrow we'll start with SOI, silicon on insulator. ठीक है? अटेंडेंस ले लें. दिनों दिन तुम्हारे एक तो ये स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं. आई एम अफ्रेड. Yes, VLSI. आंचल सोनी. आंचल. अंकित. आंचल. अश्विनी. भावना. दिशा. गौरव. जिनीशा. कैसर. कुशाल. कृष्ण गोपाल बघेला. कुणाल माथुर. Kunal is there or no? नहीं है. मनदीप. नीरज. मनदीप है या नीरज है? या नेहा. पायल. प्रणव. प्रवीण. शिवांगी. सिद्धार्थ. ओके, प्रणव आया है. प्रवीण. शिवांगी. सिद्धार्थ. वैभव मंगल. वैभव मंगल. वंदना. मोहित. ठीक है. कल अपन VLSI में एक तो सेलेक्ट, ओके, कल अपन एक तो पहले
सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर फैब्रिकेशन कंप्लीट करेंगे, देन विल मूव फॉर द डेरिवेटिव पार्ट. सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, like as far as you are designing VHDL, all things are come to know. उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है. अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ फैब्रिकेशन और डिजाइनिंग था. ठीक है, ओके.